Good morning. Today we will deal with synthetic polymer part 5 in which we will discuss about natural and synthetic rubber. आज हम संश्लेषित बहुलक भाग 5 में प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर के बारे में चर्चा करेंगे. Now what is natural rubber? प्राकृतिक रबर क्या होता है? प्रकृति में रबर के पेड़ से प्राप्त होने वाला रबर प्राकृतिक रबर कहलाता है. That is, rubber obtained from rubber tree in nature is known as natural rubber. The monomer of natural rubber is isoprene. प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है. अतः हम कह सकते हैं आइसोप्रीन के बहुत सारे एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर के प्राकृतिक रबर बनाती है. That is, many isoprene unit combines together to form a polymer, that is natural rubber. It is known as cis 1,4-polyisoprene. ठीक है. नाउ पोली आइसोप्रीन में दो द्विबंध हैं. अतः यदि दो इकाइयां परस्पर संयुक्त होगी तो दोनों का एक एक द्विबंध कम हो जाएगा. That is, isoprene has two double bond. When two units of isoprene combines, then the one double bond from each unit decreases और इकाई में एक एक द्विबंध बना रहता है. And one double bond is left in monomer unit. प्राकृतिक रबर में बाउल के अणु में लगभग 11,000 से 20,000 तक आइसोप्रीन इकाइयां पाई जाती है. That is, nearly 11,000 to 20,000 monomer units are found in polymer natural rubber. प्राकृतिक रबर की बहुलकीय श्रृंखला में समस्त CH2CH2 समूह एक ही तरफ होते हैं, अर्थात समकक्ष होते हैं, तो उस प्रकार का रबर प्राकृतिक रबर कहलाता है. तो हम कह सकते हैं, देखिए, CH2CH2 इकाई, CH2CH2 इकाई, CH2CH2 इकाई और ये CH2CH2 समूह. नेचुरल रबर में CH2CH2 समूह, CH2CH2 समूह एक ही और है. दैट इज, एक ही तरफ है, समकक्ष स्थिति में पाए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक रबर कहलाता है. अगर मान लीजिए ये दोनों CH2CH2 समूह ट्रांसपोजिशन पर होते, एक यहां और एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां. That is, if CH2CH2 group will be present on transposition, then it is known as gatta parcha rubber. So we can say natural rubber is known as polycis isoprene, while gatta parcha rubber is known as polytrans isoprene. So this is polycis isoprene. If CH2CH2 group are present at transposition, then it is known as gatta parcha rubber, and this gatta parcha rubber is known as polytrans isoprene. Now, what is method of isolation of natural rubber? The natural rubber tree is generally found in India, Mexico, Africa, Venezuela. प्राकृतिक रबर के पेड़ सामान्यतः भारत, मैक्सिको, अफ्रीका और वेनेजुला आदि में पाए जाते हैं. यदि इन रबर के पेड़ों में तने पर चीरा लगाया जाए तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं. If a triangular cut is made in a stem of this tree, then milky substance is being obtained, which is known as latex. वस्तुतः यही जल में रबर का कोलाइडी विलयन होता है.
It is the colloidal solution of rubber in water. इस प्रकार से प्राप्त लेटेक्स को जल में इतना तनु करते हैं कि इसमें रबर की प्रतिशत मात्रा 10 से 20% रह जाती है. That is, latex is diluted till the percentage of rubber becomes 10 to 20%. फिर इसमें 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है. Then 1% एसिटिक एसिड is added, जिससे रबर के कोलाइडी कण स्कंदित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, due to which the colloidal particle of rubber coagulates. इसे छानकर पृथक कर लिया जाता है, and it is then filtered and separated. प्राकृतिक रबर सॉफ्ट होता है, अतः इसका उपयोग जूते, बरसाती कोट, गोल्फ की गेंद आदि बनाने में प्रयुक्त होता है. नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, so it is used in making shoes, raincoats and golf ball, etc. Now what is वल्कनीकृत रबर? प्राकृतिक रबर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए वल्कनीकरण किया जाता है. इसके लिए प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं. That is, when natural rubber is heated with sulfur, vulcanization takes place. इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है. So we can say the double bond chain of natural rubber combines with क्रॉस बॉन्ड ऑफ सल्फर, जिससे अधिक मजबूत, प्रत्यास्थता तथा जल को प्रतिष्ठित करने के गुण प्राप्त होते हैं. So vulcanized rubber is more stronger than natural rubber. It is more elastic and have a property of water repellent. Its structure is shown as such. This is the structure of vulcanized rubber, in which the cross bond of sulfur are being present. Now, संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर. विश्व में रबर के बढ़ते उपयोग और प्राकृतिक रबर की कम आपूर्ति के चलते संश्लेषित या कृत्रिम रबर का प्रचलन आवश्यक हो गया है. That is, due to more demand of natural rubber and less production of natural rubber, the artificial rubber are used in place of natural rubber. First is Buna N. प्रथम संश्लेषित रबर है ब्यूना एन. ब्यूना एन से तात्पर्य है Bu मतलब ब्यूटाडाइन, Na मतलब सोडियम और N मतलब एक्राइलोनाइट्राइल. दैट इज नाइट्राइल या एक्राइलोनाइट्राइल. तो हम कह सकते हैं जब ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल के साथ सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करती है तो हमें सिंथेटिक रबर ब्यूना एन प्राप्त होता है. That is, when 1,3-butadiene, that is butadiene, when react with acrylonitrile in presence of sodium catalyst, it co-polymerize to give an synthetic rubber Buna N. It is also known as rubber acrylonitrile. That is, its commercial name is rubber acrylonitrile or GRA perbunane. इसे हम GRA perbunane या रबर एक्रिलोनाइट्राइल औद्योगिक नाम से भी जाने जाते हैं. Now it is used in making fuel tanks. ईंधन टैंक बनाने में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है.
नेक्स्ट है ब्यूना एस, दैट इज Bu मतलब ब्यूटाडाइन, Na मतलब सोडियम, S मतलब स्टाइरिन। इसे हम GRS भी कहते हैं। देखिए यहाँ ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन जब सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएगा वह सबहुलीकृत होकर के हमें संश्लेषित रबर ब्यूना एस प्राप्त होगा। दैट इज व्हेन 1,3-butadiene react with styrene in presence of sodium catalyst leads to the formation of copolymer buna S। यहां पर स्टाइरिन का एक भाग और ब्यूटाडाइन का 3 भाग लेते हैं। That is, we take 3 parts of butadiene and 1 part of styrene in presence of sodium catalyst leads to the formation of copolymer buna N. It is also known as styrene rubber or GRS. इसका औद्योगिक नाम GRS या स्टाइरिन रबर भी होता है। इसका उपयोग टायर तथा रबर की अन्य यांत्रिक वस्तुएं बनाने में उपयोग लिया जाता है। That is, it is used in making tire and many other mechanical substance made up of rubber. अगला संश्लेषित रबर है ब्यूटिल रबर। Next synthetic rubber is butyl rubber, which takes place by 3 steps. यह 3 पदों से पूर्ण होता है। प्रारंभन पद, it is known as initiation step, in which BF3 when react with water leads to the formation of H plus and BF3OH minus. This H plus react with 2-methyl propene। जब H plus 2-methyl propene के साथ क्रिया करता है तो हमें तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनाता है। It forms tertiary butyl carbonium ion and this step is known as chain initiation step। इसे हम श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहते हैं। The next step is known as chain propagating step, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद या श्रृंखला संचरण करने वाला पद। इसमें तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन जब ये 2-methyl प्रोपीन एकलक इकाई के साथ क्रिया करेगा तो हमें श्रृंखला बढ़ रही है। That is, chain is propagating. This step is known as chain propagating step. Then chain termination. The carbocation obtained from chain propagating step react with BF3OH minus. We get butyl rubber। हम कह सकते हैं श्रृंखला संचरण वाले पद से प्राप्त कार्बोकेटाइन जब BF3OH माइनस के साथ क्रिया करेगा तो हमें ब्यूटिल रबर प्राप्त होगा और श्रृंखला टर्मिनेट हो जाएगी। दैट इज चेन विल टर्मिनेट, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो दिस इज ब्यूटिल रबर। इट इज एन सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट है नियोप्रीन। नेक्स्ट इज नियोप्रीन। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीक्लोरोप्रीन। इसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। जब एसिटिलीन का डाइमराइजेशन कराते हैं तो हमें वाइनिल एसिटिलीन प्राप्त होता है। दैट इज when acetylene on dimerization in presence of methylene chloride and ammonium chloride leads to the formation of vinyl acetylene, and this vinyl acetylene, if HCl is added on vinyl acetylene, leads to the formation of 2-chloro-1,3-butadiene। जब vinyl acetylene में HCl का योग कराएंगे तो हमें 2-chloro-1,3-butadiene या क्लोरोप्रीन प्राप्त होगा। और क्लोरोप्रीन की अनेक एकलक इकाइयां आपस में बहुलीकृत होकर के हमें बहुलक नियोप्रीन प्राप्त होता है। दैट इज व्हेन many units of chloroprene monomer polymerizes, it forms a polymer neoprene which is a synthetic rubber। इसका व्यापक स्तर पर
उपयोग संचार बेल्ट, प्रिंटिंग रोल्स, लचीले ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। इट इज widely used in making communication belts, printing rolls, and flexible tubes. नेक्स्ट है संश्लेषित प्राकृतिक रबर, दैट इज सिंथेटिक नेचुरल रबर। जब हम आइसोप्रीन को जिगलरनेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीमराइज कराते हैं तो हमें संश्लेषित प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। That is when many units of isoprene reacts in presence of Ziegler-Natta catalyst, it polymerizes to give an synthetic natural polymer. Next is thiokol. When monomer unit 1,2-dichloroethane and sodium sulfide polymerized to form a synthetic rubber, thiokol and sodium chloride. It is widely used in tire industries. जब 1,2-डाइक्लोरोएथेन और सोडियम सल्फाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें संश्लेषित रबर थायोकोल प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड। थायोकोल का व्यापक उपयोग टायर उद्योग में किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर 5, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रबर। थैंक यू।